Hello student, today we are going to discuss about the formal and informal organization. So student, in our last class, in our last video, we have learned that organizational structure and its types. Okay, so in this video we are going to learn what is formal organization and what is informal organization. तो स्टूडेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या होते हैं जो बिल्ड्स हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिविजुअल्स इज नॉट इट मीन्स इन द definitions of organization we have learned that it creates relationships or identify the relationships and states that who is the authority and who has the responsibility to do some tasks. So with this there are some relationships has been created, and these relationships are called some are called the formal and some are called the informal organizations. Okay, so in this video we are going to learn in details about that what is a formal organization and what is a informal organization. Okay, so generally see student, first of all kya hote hai formal organization. So in this picture you can clearly see the formal organization here in this table, that there is office meeting going on and the people are sitting in a round table and they are discussing and about something, okay, some important matter. तो ये जो यहाँ पे in this picture we can clearly assume that the boss who or the employees who is showing some pictures to them, and the people who were sitting, the employees who are sitting, they are also listening to them. That means they are the employees of the organizations, and maybe there is some authority responsibility relationships then between them, and that's why they are sitting there, that's why they are here. So this is the relationships which is created by the organization itself, and जो कि हम employees खुद से क्रिएट नहीं करते. ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो फॉर्म क्या होते हैं देखो, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज़ डिजाइन्ड एंड एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप्स ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स, each bearing a definite authority, responsibility and accountability. Okay, and there is a superior subordinate relationships. क्लियर. तो ये क्या होते हैं जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, थिंक अबाउट द योर स्कूल. जो स्कूल में क्या होते थे, अभी हम लोग के कॉलेज के बारे में सोचो. Like when you took admission in our college, you don't know who will be your friend and who is going to be your teacher. तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बट तुम जब यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिए हो उसके बाद you have understood, okay, this is our VP sir, this is our the faculties and these will be my classmates. Okay, तो ये जो तुम्हारे क्लासमेट्स है, ये VP सर है, ये रिलेशनशिप तुमने खुद से नहीं क्रिएट किया, वो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट कर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, एंड यहाँ पे क्या होता है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, दीज थिंग्स आर क्लियरली डिफाइंड. मीन्स लाइक द टीचर्स हैज द authority to give you the orders, and you student has the responsibility to obey the rules, to obey the regulations of the schools. So in the same way, in any company or business organization also, management creates some relationships, like these will be your boss and these people are going to be your employees or subordinates, and accordingly you have to work. वो तुम खुद से चूज नहीं करते, वो डेलिबरेटली किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज सी फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर क्या हो सकता है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्री डिटरमाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट. ऑलवेज रिमेंबर, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो डिटरमाइंड कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड. ओके, दिस विल बी द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके नीचे ऐसे सब हेड रहेगा, तो ये सब क्रिएटेड होता है. नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. तो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही किसी को सुपरियर बना दिया, किसी को सबऑर्डिनेट बना दिया. नो, द सुपरियर सबऑर्डिनेट या फिर कौन हेड रहेगा, कौन क्लरिकल, कौन लोअर लेवल पे रहेगा, दिस इज बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर. एज यू नो, इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव लर्न द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन. तो आई होप उसका उस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे से होता है. नेक्स्ट, इट हैज़ रिटन रूल्स एंड प्रोसीजर्स. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स रहते हैं. दैट मीन्स ये जो रिलेशनशिप्स क्रिएट होते हैं, लाइक द ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, वहाँ पे रूल्स रहते हैं कि ओके, यू हैव टू वर्क इन दिस वे, यू हैव टू रिपोर्ट एट दैट टाइम टू योर बॉस. तो ये कब कौन सा स्टेप्स लेना होगा, उसके लिए जो क्लियरली मेंशन रूल रहते हैं. नेक्स्ट,
इट यूजेस ऑफिशियल लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वो ऑफिशियल लाइन होता है। डेट मीन्स या तो ये वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा। डेट मीन्स एक प्रोसेस के जरिए जाते हैं। मीन्स नाउ यू वांट टू टॉक विद इन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड यू आर वर्किंग इन लोअर लेवल मैनेजमेंट, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट यू कैन सिंपली गो टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड टॉक विद देम। नो, इसके लिए कुछ एक फ्लो होना पड़ेगा, लाइक ऑफिशियल फ्लो मीन्स वन बाय वन, जैसे कि गैंग प्लान है हम लोगों ने पढ़ा था, स्केलर चेन। ओके, तो उस जरिए से जाना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई हियर इट इज रिटन दैट इट यूजेस ऑफिशियल लाइन्स ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस ऑफ द पर्सनल। तो द एम्प्लॉयज हु वर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस मैनेजमेंट, तो जनरली क्या होते हैं, इन केस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन whether they like their job or whether they are satisfied or not. Okay, to some extent they will take कि अच्छा तुम satisfaction level motivation देते हैं, but एक लेवल तक। ऐसा नहीं है कि तुम्हें सपोज कुछ काम अच्छा नहीं लगा तो सपोज तुम्हारा बॉस तुम्हें कुछ डांट कुछ एब्यूसिव कुछ बोल दिया तो तुम्हें जो ख़राब लग रहा है, ये सब चेक नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, जैसे कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जो पढ़ने जा रहे, वी आर गोइंग टू लर्न आफ्टर इन नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ क्या होता है, फ्रेंडशिप के बीच में तो क्या रूल्स रेगुलेशन रहते हैं। सपोज तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच में क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे कि ओके तुझे ये करना पड़ेगा तो मैं ये काम, ऐसा तो नहीं रहता, गिव एंड टेक तो नहीं रहता है ना। अच्छा, कुछ कुछ फ्रेंडशिप में रहता है, बट सब में नहीं रहता। तो ये क्या होता है, इट डज नॉट, यहाँ पे जो ह्यूमन इमोशंस है उसको इतना कंसिडर नहीं किया जाता, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड out of the organizational structure and which will be suitable for the management. Okay, तो ये सब consideration नहीं किया जाता। तो these are the features of formal organization. Next से क्या होता है, informal organization. Okay, तो I hope you have understood the meaning of formal organization. Basically student क्या होते हैं, formal organization जो होते हैं it helps in deriving the following benefits. बहुत सारे benefits भी देते हैं। क्या formal organization helps in determining the objectives of various units and departments. क्योंकि formal होता है ना, तो उसमें पता चलता है कि this is the head of the department, ये head होगा, ये superior होगा, ये subordinates होगा, तो who is going to makes the rules and responsibilities, किस क्या objectives होगा, तो सब कुछ clearly defined रहता है। ओके, अच्छा देखो, अब देखो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो क्रिएट मैनेजमेंट ने कर दिया, उस फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल they come together, join together and make a group and which is based created on the basis out of emotional stability, या फिर मान लो रेट्रैक्टिवनेस एंड मान लो थिंकिंग ओपिनियन सेम है, तो तब जब क्रिएट होता है उसको हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो स्टूडेंट क्या होते हैं, इज यू नो ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल पर्सन। ओके, सोशल बीइंग, humans are the social being, so you cannot leave the society, you have to live within the society. Okay, no one can live in isolation. ठीक है, तो फ्रेंड्स नहीं, फैमिली नहीं, विदाउट ऐसे कोई अलोन नहीं रह सकते। वो ऐसा रहने के लिए तो मॉन्क होना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मॉन्क आर नॉट बैड, बट सब में तो नहीं होता। तो सपोज जब तुम यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन ले, जो मैंने एग्जांपल दिया था, लाइक दिस विल बी योर, जब तुम्हें एट द टाइम ऑफ टेकिंग एडमिशन यू डोंट नो हु विल बी योर क्लासमेट्स, बट आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉलेज यू हैव अंडरस्टूड ओके दिस विल बी माई क्लासमेट। बट उसके बाद क्या हुआ, सबके साथ तो फ्रेंडशिप नहीं होता, बट कुछ ग्रुप जो होता है उसके साथ कुछ स्पेशल वाला बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाता है। क्यों होता है, बेबी तुम्हारे मे बी यू पीपल लाइक क्रिकेट, तो वो तुम्हारा अपोजिट जो बंदा है उसको भी क्रिकेट पसंद है, या फिर तुम्हारा चॉइस के साथ या फिर तुम्हारे ओपिनियंस के साथ सेम बहुत सिमिलरिटीज़ है, तो उसके लिए तो हम लोग और एक स्मॉल ग्रुप केयर करते हैं। तो लाइक दिस वे इन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑलरेडी सेटअप which is created by the management. After that, in the formal organizations, there may be some people who find themselves in similar or attractive or means opinions, thinking same होते हैं, तो they can make friends or they created some group which is called the informal organization. Clear? Informal organization is the part of the formal organization. Employees working together in the formal organization interact with each other daily. So after this interaction, they may means create some belongingness and they can create the group. They develop friendly relationships and form the small social groups. The network of these social groups based on the friendship is known as informal organization. So I hope you have understood the meaning of informal organization.
अब देखो इसका फीचर्स क्या है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड लाइक द फॉर्मल वन एंड दे अराइज स्पॉन्टेनियसली. वो आउट ऑफ योर ओन डिज़ायर्स यू हैव क्रिएटेड. ऐसा तो नहीं कि सबके साथ फ्रेंडशिप करते रहोगे. तुम्हें अच्छा लगता है फ्रेंडशिप करते, तुम्हें अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने में. एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो जिसके साथ तुम्हें अच्छा लगता है तो उसके बाद ही तुम जाके वो ग्रुप क्रिएट करते हो, है ना. इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन टेस्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इंटरेस्ट. ये सब भी हो सकता है. इट हैज़ नो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस. लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन फ्रेंडशिप देयर विल बी नो रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, कि अच्छा ये रूल्स होगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता है. देन इट जनरली स्मॉल इन साइज. तो जनरली जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ग्रुप होते हैं, वो स्मॉल ही होता है कंपेयर टू द फॉर्मल. फॉर्मल क्या होता है, एक डिपार्टमेंट ही पूरा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. बट इनफॉर्मल उसमें से मान लो 4-5 लोगों का एक ग्रुप है तो वो स्मॉल इन साइज होता है. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर स्मॉल इन साइज. नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अनस्टेबल इन नेचर. इट्स लाइफ इज़ जनरली शॉर्ट. ओके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है. मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्टेबल ही रहेगा. लाइक देयर में भी सम सिचुएशंस की ट्रांसफ़र हो गया किसी का, या फिर प्रमोशन हो गया, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, या फिर मान लो किसी ने जॉब छोड़ दिया, तो तब तो वो ग्रुप तो नहीं सेम नहीं रहेगा. बट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो तो सेम ही रहेगा कि ये डिपार्टमेंट है, ऐसे ही वर्क होगा, ऐसे ही बॉस रहेंगे, ऐसे ही एम्प्लॉयज़ वर्क करेंगे. क्लियर. तो इट्स लाइफ इज़ जनरली शॉर्ट. तो जनरली क्या होता है कंपेरिजन टू फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होते हैं. ओके, नाउ रीज़न, सिग्निफिकेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस. क्यों क्रिएट होते हैं और उससे क्या फ़ायदा होते हैं. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होते हैं या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल का कोई बॉन्डिंग रहता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है. देखो, informal organization gives support to the formal organization in achieving organizational goals effectively and efficiently. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही है वो जो हेल्प करेंगे और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. क्यों? क्योंकि देखो सपोज इफ पीपल आर वर्किंग इन ए टीम. ओके, अगर टीम में अगर जो मेंबर्स है एंड यू आर नॉट गेट अलॉन्ग विथ देम वेरी वेल एंड यू डोंट लाइक देम, सो अल्टीमेटली यू कैन नॉट गिव योर 100% रिजल्ट. ओके, सो द टीम शुड बी वेरी फ्रेंडली. देन उसमें क्या होगा, काम करने में बहुत अच्छा भी लगेगा. तो डेट्स व्हाई इट इज सेड दैट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रहना बहुत ज़रूरी है. उससे क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स है उसको अचीव करने में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यू कैन अचीव. बाय ज्वाइनिंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज फील सिक्योर. क्या होता है, सपोज एज आई टोल्ड यू, नो वन कैन stay in isolation. So whenever you find yourself in a group, so you can feel that okay, you are supported by some people and you have friends, you have a good gang. So at least क्या होता है, यू कैन फील सिक्योर. मीन्स समटाइम्स सपोज कभी कुछ मान लो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मिसबिहेव हो गया, मीन नॉट मिसबिहेव, लाइक कुछ ऐसा मिस ट्रीटमेंट हो गया, तो एटलीस्ट यू कैन क्लेम एंड एटलीस्ट योर फ्रेंड्स कैन सपोर्ट. ओके, एंड दोज हु लाइक यू. इट फॉस्टर्स द कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि स्कॉलरशिप में क्या होता है, टॉप लेवल टू लोअर लेवल तक मैसेज आने में कम्युनिकेशन जो होते हैं तो मैसेज पास होने में टाइम लगता है. बट इनफॉर्मल में क्या होता है, इट कैन इजीली पास. ओके, सपोज तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसे तुम पसंद करते हो, वो सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो यू कैन इजीली पास द इन्फॉर्मेशन. ऑल्दो मिस हो जाता है ना, सपोज वो क्या होता है, तो इसमें फॉस्टर कम्युनिकेशन, तो देरी नहीं लगता. दैट्स वाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस का और एक नाम है जिसको हम लोग ग्रैब बाइन बोलते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज. नेक्स्ट, it gives psychological satisfaction to the members. They get a platform to express their feelings and emotions. तो that means क्या है, तो तुम्हारा psychological satisfaction होगा वो भी informal organization से होता है. क्योंकि देखो man is not machine. man और machine में तो difference है ना. तो machines क्या होता है, कुछ भी डालो वो लोग काम ही करते रहेंगे, machines तो काम ही करते रहेंगे. तो human being तो ऐसा नहीं है, उसको सब कुछ चाहिए. ओके, like he can work and at the same time he needs some से मेंटल सेटिस्फेक्शन, ही नीड्स सम फ्रेंडशिप्स, उसको एंटरटेनमेंट भी चाहिए. तो उसके लिए क्या वो अकेले तो नहीं कर पाएगा. तो दिस इज़ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच हेल्प देम टू सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल नीड्स. ओके, so this is the reason for forming the informal organizations. I hope understood. Now the difference between formal and organizations and informal organizations, and which is also very very simple and easy, and here I'm not going to explain it. Student, you can find by yourself. Okay, so this is about the formal and informal organizations, and I hope you have understood, student. So if you have any doubt, you can write down the comment section. So this is about today.